There are the visuals before your eyes. The Gujarat Chief Minister Bhupender Patel has reached the site of the game zone fire where over 24 people have lost their lives. This is the morning after the incident. He is with the Home Minister of Gujarat, Harsh Sanghvi, whom he had dispatched late last evening. And Harsh Sanghvi has effectively been there throughout the night. So have a lot of the officials present there. Bulldozers also deployed to attempt to clean the remains of this area that has been completely gutted by this fire, even as rescue operations continue to find those who are missing. We've been reporting live from the scene. We've had Hiten there, who has been at the spot all night. He has filed a number of reports, also pointing out the various lapses. We'll be getting Hiten to join us once again shortly. Viewers, on your screen on the left-hand side are live visuals of the Chief Minister of Gujarat, Bhupender Patel, who has now reached the site of the TRP game zone. We've also got a visual on the right, which is, believe it or not, the early stages of the fire. Look how large this blaze is. And look at how it is taking a lot of time for the people in the adjacent building to react and evacuate it. We are told that this is a complex that was connected in many ways. However, the biggest problem here appears to have been that there was only one staircase for entry and exit to this 3-floor establishment, this game zone, which has been completely gutted in this fire to the point where the metal furnishings have been bent completely out of shape. They have been melted completely out of shape and are 2:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचे थे। जो सबसे पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पर पहुंचे थे गवर्नमेंट में से, उन्होंने सारी जानकारी जुटाई थी। उसके बाद वो करीब रात भर राजकोट कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से, एसआईटी की टीम से वो मीटिंग करते रहे, क्योंकि एसआईटी ने भी अपनी कुछ जांच शुरू की थी, कुछ सैंपल कलेक्ट किए थे। उसके बाद अब जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए तो आप सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं कि हर्ष संघवी पूरी तरह से ब्रीफ कर रहे हैं। हर्ष संघवी जो यहाँ पर उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी कि जो भी लापरवाही हुई है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की जिम्मेवारी इस गुजरात के युवा गृह राज्य मंत्री को दी गई थी, वो अब मुख्यमंत्री को पूरा रिपोर्ट दे रहे हैं कि एसआईटी ने उन्हें क्या बताया है, लोकल पुलिस ने उन्हें क्या बताया है, फायर की टीम ने उनको क्या बताया। वो पूरा का पूरा रिपोर्ट उन्हें समझाया जा रहा है कि कब क्या कैसे क्या हुआ था। क्योंकि हालांकि देखिए, अब तक सरकार की तरफ से या फिर राजकोट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये साफ नहीं किया गया कि आग लगने की वजह क्या थी, क्योंकि कल तक ये बताया जा रहा था जब तक रेस्क्यू कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये कह नहीं पाएंगे कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी। क्योंकि रेस्क्यू, ये मलबा आप जो देख रहे हैं अभी, वो मलबा जब तक पूरी तरह से हटेगा नहीं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं फायर की टीम जो है वो जांच करेगी कि आखिरकार आग लगने की असली वजह क्या थी। लेकिन एक वीडियो जो सामने आया हुआ है जिसमें दिख रहा है कि रिनोवेशन साइट पर सबसे पहले आग लगी थी, वो आग धीरे धीरे ऊपर फैलते हुए पूरे 3 मंजिला तक पहुंची और उसके बाद ये पूरा का पूरा गेम जोन जो है वो मलबे में तब्दील हो गया और पूरी तरह जलकर राख हो गया। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि एक राइट हैंड साइड पे सीढ़ियां थी, वो एक ही रास्ता था जो ऊपर नीचे करने के लिए का जरिया था, जिसके चलते कुछ लोग अंदर की तरफ बच्चों को बचाने के लिए भागे कि बच्चे हैं, और कुछ लोग बाहर की तरफ अपने आप को बचाने के लिए भागते नजर आ रहे उस तस्वीर में। लेकिन जब वो आग ऊपर तक पहुंची और रास्ता जब पूरी तरह ब्लॉक हो गया होगा तो आखिरकार क्या तस्वीरें होगी, सिर्फ वही एक is reporting live from the spot and telling us how after the fire broke out, things took a turn for the worse. So far, from what we know, 28 people have lost their lives in this massive blaze in Rajkot. In the visuals, what you can see right now is the Home Minister Harsh Sanghvi briefing the Chief Minister of Gujarat at the spot, surrounded by other officers and police personnel as well. There are many factors coming into play now in the sense what happened, how the fire broke out, but the priority is the rescue operation which is currently underway. More than 24 people, including children, unfortunately were
killed after a massive fire broke out at the TRP game zone in Gujarat's Rajkot on Saturday. On one hand, you can see the visuals of what happened, the tragedy, and on the other hand, visuals coming in, exclusive visuals of the Chief Minister being briefed by the Home Minister of Gujarat there at the site where the fire broke out. Fire tenders are at the spot. Efforts made to control the fire and rescue any trapped individual. Meanwhile, Nitin Jain, the manager of the TRP game zone, and Yuvraj Singh Solanki, the owner of the game zone, have been arrested. So legal action has been taken, but it's an unfortunate development coming to fore of 28 people losing their lives, which also includes several children. On cam, what you see right now are the moments when the fire broke out. So these are the moments when the fire had just started and then it started spreading and engulfed the entire gaming zone. 28 people lost their lives. Right now, the Chief Minister is at the spot, and you can see the wreckage behind there of the remains, in fact, of one stood was a structure, a gaming zone that was engulfed completely in fire. On the other hand, you can also see how when the fire broke out, you see people running here and there. Fear, in fact, atmosphere of fear is what is visible. Then there are people who try to get into the room to control the situation. The fire officials were rushed to the spot to take charge and douse fire. The Chief Minister now taking a brief from the police officials as well as the Home Minister as to what transpired there. Fire broke out in the TRP gaming zone, after which it spread uncontrollably and engulfed 28 lives. Rescue operation is still underway. The priority is to look for individuals who may have been trapped under the debris. The gaming zone is owned by Yuvraj Singh Solanki, who has been arrested by the police. Along with Yuvraj Singh Solanki, we're given to understand that Nitin Jain, the manager of the TRP game zone, has also been arrested. We'll try and connect with... सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ हर्ष संघवी भी यहाँ पर मौजूद है, जो घटनास्थल का जिन्होंने जायजा लिया, और अब वो यहाँ से सीधे सिविल अस्पताल जा रहे हैं, जहाँ पर 28 शवों को रखा गया है। ये कहीं ना कहीं सीधी वहाँ की तस्वीर, यहाँ की तस्वीर है घटनास्थल की, जहाँ पर मुख्यमंत्री अब सीनियर ऑफिशियल्स और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी से पूरी की पूरी रिपोर्ट ले रहे कि आखिरकार यहाँ पर कल शाम में हुआ क्या था, किस तरीके से आग लगी थी और किस तरीके से वो आग ने इतना विकराल स्वरूप धारण कर लिया कि पूरा का पूरा गेम जोन जो है वो जलकर राख हो गया और शमशान भूमि में तब्दील हो गया। क्योंकि जो भी सब यहाँ से बाहर निकले हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लायक भी नहीं है, इसीलिए अब कहीं ना कहीं डीएनए का सहारा लिया जा रहा है और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ही आइडेंटिफाई करके उन 28 शवों को अपने परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जब यही तस्वीरें जब 2 साल पहले मोरबी में जब हादसा हुआ था, ब्रिज गिरा था, उस वक्त भी यही तस्वीरें थी, और यही तस्वीरें अब से कुछ महीने पहले जब बड़ौदा में हरणी में बोट हादसा हुआ था, 12 बच्चे मरे थे, कुल 14 लोग मरे थे, तब भी था, तब भी यही मुख्यमंत्री थे, तब भी यही गृह राज्य मंत्री थे और तब भी यही तस्वीरें थी कि ये दोनों स्पॉट पर पहुंचे थे। ये के कैलाशनाथन आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री के अग्र सचिव है, ये भी उस वक्त घटनास्थल पर पहुंचे थे, दोनों घटना में वो पहुंचे थे। अब तक गुजरात के डीजीपी आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए ये गुजरात के डीजीपी विकास सहाय भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सभी आला अधिकारी उस वक्त भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, उस वक्त भी अस्पताल गए थे, उस वक्त भी इसी तरीके की तस्वीरें आई थी। लेकिन जब पहली बार ये तस्वीरें निकली थी, उसके बाद सबक सीखते हुए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों बार बार इस तरीके की तस्वीर देखने मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं इसी सब सवाल का जवाब जो है वो पूरे गुजरात से अब हर कोई अपने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से पूछ रहा है कि आखिरकार कब तक इस तरीके से सहन करते रहे, कब तक बच्चों की मौत सहन करते रहे। क्योंकि जब मोरबी कांड हुआ था 100 से ज्यादा लोग मरे थे, उसमें बच्चों की संख्या ज्यादा थी। बड़ौदा बोट कांड में 12 बच्चे मरे, 2 टीचर मरे। इस बार 28 जो जुलसे है उसमें से लगभग बताया जा रहा है 15-16 बच्चे हैं और कुछ 4 से 5 बच्चों की उम्र
तो 12 से भी कम है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की मौत की जिम्मेवार क्यों बार बार गुजरात सरकार बन रही है? क्यों गुजरात सरकार एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं रही है? क्यों गुजरात सरकार कोई एक नियमावली या नॉर्म्स बना नहीं रही है सभी चीजों के लिए कि लोकल अथॉरिटीज उस नियम का पालन सख्ताई से करवाए? इस तरीके का काम गुजरात सरकार क्यों नहीं करवा पा रही है? ये सभी सवाल का जवाब जो है कहीं ना कहीं अब हर कोई जानना चाह रहा है, लेकिन ये जवाब अब कब मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजकोट से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ नव भारत। Alright, so that was a report filed by Hiten. I believe he's live with us on the broadcast. Hiten, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वीकेंड का दिन था, समर वेकेशन, यानी कि बहुत सारे बच्चे वहां गेमिंग जोन में मौजूद रहे होंगे। बहुत बुरी खबर अगर आप गुजरात की बात करें, इस हादसे की बात करें, और खास तौर पर उन परिवार वालों का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। बिल्कुल, देखिए सैटरडे का दिन था और सिर्फ राजकोट नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं राजकोट के आसपास में मोरबी भी है, करीब 45 मिनट का रास्ता है, गोंडल है, सबसे नजदीक जेतपुर है। तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट से मतलब लोग जो है वो आते हैं, क्योंकि ये जो गेम जोन है मेरे ठीक पीछे जो अब मलबे में तब्दील हो गया है या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि शमशान घाट में तब्दील हो गया है, क्योंकि 28 शव निकले यहाँ से और 28 शव की हालत अगर हम देखें या तस्वीर अगर हम लोगों को दिखाएं तो कहीं ना कहीं वो दिखाने लायक भी तस्वीर नहीं है, क्योंकि कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। उस तरीके से वो जलकर उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो जब ये जो गेम जोन जब था तब ये पूरे राजकोट डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गेम जोन था। तो यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट से और अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते थे घूमने फिरने के लिए। वैकेशन पीरियड चल रहा है, वीकेंड का टाइम था और बच्चों को अपने परिवार के साथ और जब पेरेंट्स को भी वीकेंड पे समय मिलता है कि बच्चों के साथ वो घूमने फिरने चले जाते हैं। लेकिन कल जब वो 28 लोग यहाँ पहुंचे थे तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनका ये आखिरी दिन होगा। कुछ के तो परिवार के सदस्य भी जो है वो राजकोट जिले में या फिर अगल बगल के जिले में भी मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि वो विदेश में रह रहे हैं। अब जब तक उन्हें वहां पर जानकारी नहीं होगी कि आपके परिवार के लोग भी मिसिंग है तब तक वो विदेश से गुजरात नहीं पहुंचेंगे और तब तक उनका डीएनए नहीं लिया जाएगा। तो क्या तब तक वो 28 में से कुछ शव ऐसे ही वहां पर पड़े रहेंगे? ये सभी सवाल के जवाब जो है कहीं ना कहीं इस वक्त गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री आए, विजिट किए, करीब 15-20 मिनट तक रुके। होम मिनिस्टर हर्ष संघवी उन्हें पूरा ब्रीफ किया। डीजीपी मौजूद थे के कैलाशनाथन, जो एक तरह से कहा जाए कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर ही है, क्योंकि वो बरसों से गुजरात के मुख्यमंत्री के अग्र सचिव है। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री छुट्टी पर हो या फिर मुख्यमंत्री प्रदेश के बाहर हो तो के कैलाशनाथन गुजरात सरकार चलाते, वो खुद यहाँ पर उनके साथ पहुंचे थे। इतने बड़े बड़े अधिकारी जब यहाँ पहुंचे, और ये तस्वीर पहली बार नहीं देखी गई। कुछ महीने पहले बड़ौदा में जब बोट वाला हादसा हुआ था, 12 बच्चे मरे थे, 2 टीचर मरे थे, 14 लोगों की मौत हुई थी, उस दौरान भी यही तस्वीर थी। 2 साल पहले मोरबी में भी यही तस्वीर थी। 5 साल पहले 2019 में यही तस्वीर थी। लेकिन नेता कुछ और थे, मुख्यमंत्री कोई और था, विजय रूपानी की सरकार थी। लेकिन उसके बाद भी कोई किसी प्रकार का कोई सबक नहीं लिया कि आखिरकार किया क्या जाए। ये पहला मामला नहीं है। पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी, 22 बच्चे झुलस कर मर गए, कुछ गिर के मर गए। उसके बाद आपने एक नॉर्म्स तैयार किया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये गाइडलाइन होगी। उसके बाद जब पुल नॉर्म्स तैयार किए थे, गाइडलाइंस तैयार की गई थी, लेकिन ऑन ग्राउंड उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्या कोई ये नहीं देख रहा था? एक सवाल ये। दूसरा सवाल, ये जो इतने क्लोज स्पेसेस होते हैं, इनमें अगर आग लग जाए तो उससे निपटने के लिए क्या अंदर फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए फायर सेफ्टी मेजर्स की बात तो बिल्कुल सही है, वो तो थे ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गेम जोन और इस तरीके का जो एरिया पूरे गुजरात में है, उसके लिए किसी प्रकार के कोई नॉर्म्स ही नहीं है, कोई गाइडलाइन ही नहीं है कि आखिरकार ये जब बनाया जाए तो किस गाइडलाइन के तहत बनाया जाए। ये कोई नियमावली ही गवर्नमेंट के उसमें नहीं है। लेकिन आप देखिए, जिस सेफ्टी मेजर्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपको रेड पाइप दिख रहा होगा, वो वहां से बाहर से, गेट के बाहर से शुरू हो रहा है और वो पीछे तक जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ बिछाया हुआ है।
कहीं भी मोटर से ये कनेक्टेड नहीं है। हालांकि अगर ये कनेक्टेड होता तो कल जब आग लगी उस वक्त पानी के बौछार से उस आग को तत्काल प्रभाव से रोका जा सकता था, क्योंकि जो वीडियो हम दिखा रहे उस वीडियो में यही दिख रहा है कि आग लगी, उसके बाद कोई पानी का छिड़काव तक नहीं कर रहा था, सब इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग बच्चों को बचाने के लिए अंदर गए, जिन्होंने खुद अपनी जान अंदर गंवाई होगी, हो सकता है गंवाई भी हो, और कुछ बचा के भी निकले हो। लेकिन ये जो पाइपलाइन है ये ठीक इसके ठीक पीछे वहां पर जब शुरुआत में हम पहुंचे थे तो वहां पर 2 मोटर कनेक्टेड है। उन दो मोटर्स से भी ये पाइप जो है वो कनेक्ट नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी लापरवाही है जो आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी लापरवाही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अच्छी तरह से शायद ये लोग जानते थे कि अगर कोई हादसा हो जाएगा तो इतने सारे लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे। दिस इज क्रिमिनल, दिस क्रिमिनल नेग्लिजेंस।